Hello friends, how are you? I welcome you to my YouTube channel Educare, and today we are going to discuss a very important topic of English language, that is tenses. Friends, we'll start this video with brief introduction of the tenses, and after that we'll discuss present indefinite tense. So before going ahead, I want to make a request to you. If you find the video good enough, please like and share it. And if you are new to this channel, please subscribe it so that you can watch all of my videos. Let's start. Friends, you can see the type of tenses. Type of tenses with the help of this timeline. Today, you can see in the white ball, this is present time, today. And the time which has gone past is yesterday, and the time yet to come, that is tomorrow. The today time represents present tense, present, and the time past yesterday represents past tense, and the time yet to come, which is in the womb of future, that is future tense. You know, tenses are equal to time. So if you wish to understand this topic or tenses, we have to understand the time. You see, present is associated with the today, what happens right now, and what will happen in the future, nobody knows. What is going to take place, that is future tense, and what happened or what had gone past, that is yesterday, which represents past tense. So let's move ahead. You see, we'll discuss here subtypes of tenses. Friends, all of you know each tense has four parts: present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. The same way, past simple tense, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Future simple, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Friends, it doesn't mean if you know the names of the tenses, we have learned tenses. To learn tenses, we have to discuss it further. Today, as I told you, we are going to discuss present simple or indefinite tense. Friends, we'll start with the identity of present simple tense. To make it clear to you, I have taken the help of three sentences in Hindi language. You can read, हम हर वर्ष शिलोंग जाते हैं. हम हर वर्ष शिलोंग जाते हैं. The second sentence is, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है. नेक्स्ट वन इज़, हमारा विद्यालय सुबह 8 बजे लगता है. फ्रेंड्स, in these three sentences you can see these sentences ends with ते है, ता है, and ता है or ती है. These are, you can say, identity or पहचान of present simple tense. If there is ता है, ते है, ती है at the end of the sentence of present simple tense or a Hindi sentence, you can say that Hindi sentence should be written in present simple tense. In this sentence हम अब देख सकते हैं कि इनमें एक विशेष बात है कि इसमें कोई ना कोई या तो रूटीन और एक्शन है, या हैबिट्स है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स है. अब कोई भी रूटीन, कोई भी हैबिट या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जब हम उनको हिंदी में बोलेंगे तो डेफिनेटली उनके एंड में ता है, ते है और तीहे आता है. तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचानने के लिए हमें इस बात को जानना होगा, क्योंकि
हमारे लिए इंग्लिश जो है एज सेकंड लैंग्वेज है और हम उसको विद द हेल्प ऑफ आवर फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग हिंदी के हेल्प से सीखने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम कोई बात, कोई सेंटेंस बोलते हैं और वो सेंटेंस हम जब बोलते हैं और सेंटेंस के अंत में ता है, ते है और ती आता है, तो हमें समझ आना चाहिए कि दिस इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम लाइन, प्रेजेंट सिंपल टेंस ऑन टाइम लाइन। यू सी हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस, हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस। ये टाइम लाइन पर आप देख सकते हैं कि ये बीच बीच में रुक रुक के एक विशेष अंतराल के बाद ये बातें, ये घटनाएं, ये काम होते रहते हैं। इसलिए ये रिपीटेड एक्शन है, यह हमारी हैबिट्स है। इनका कोई फिक्स समय नहीं होता है, लेकिन एक अंतराल के बाद, एक रिपीट के बाद हैबिट, आउट ऑफ हैबिट ये एक्शन होते रहते हैं। ऐसे ही हम अगली टाइमलाइन पे देखते हैं फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशंस। द सन राइजेज, ये फैक्ट है, ये हमेशा होता रहता है। एक रूटीन, एक फिक्स टाइम पर हमेशा होता है। सूर्य सुबह उदय होता है तो हमें पता है कि वो हमेशा ही सुबह उदय होता है, उसका टाइम फिक्स है। और शाम को वो अस्त होता है तो सूर्यास्त का समय भी लगभग फिक्स होता है। शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट, कि फ्यूचर में कोई फिक्स इवेंट है, जैसे हम देख सकते हैं। वैसे हम फ्यूचर टेंस में आपको पता है कि सेल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में जब हमारा प्रोग्राम फिक्स हो, जब हम इवेंट जो है, जो होने वाली है वो फिक्स हो, तो हम उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। माई प्लेन लैंड्स एट 11:20, इट मीन्स जो अभी हुआ नहीं है, होगा, लेकिन उसका टाइम पहले से फिक्स है कि वो 11:20 पर लैंड कर जाएगा। तो हमें इसको समझना ज़रूरी है कि जब कोई कार्य रुक रुक के होता है, एक फिक्स अंतराल पर, एक रिपीटेड एक्शन के तौर पे होता है, या जो एक फैक्ट है वो हमेशा फिक्स टाइम पर होता ही होता है, और या फिर वो नियर फ्यूचर में शेड्यूल्ड है, उसका फिक्स शेड्यूल है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को मानते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही उन सेंटेंसेस को हम लिखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ और सिंटैक्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस लिखते हैं, फर्स्ट वन यू सी अफर्मेटिव, और यू कैन से पॉजिटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के साथ हमारी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जब हम V1 का यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम एस और एस का यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। या तो हमारी बेस वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर उसके साथ एस और एस लगता है और साथ में हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से इनको समझते हैं। राम गोज़ टू कॉलेज, राम गोज़ टू कॉलेज। अब यहाँ पे गोज़ फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि राम सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ किया है। आपको भी ये बात ध्यान रखनी है कि जो सिंगुलर वर्ब होती है, जो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही राइट्स। इसमें भी हमने, ये हमारा सब्जेक्ट ही है, दैट इज़ सिंगुलर, और इसमें राइट्स वर्ब का यूज़ किया है। राइट्स भी सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको नाउन और वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल बनाना सिखाया था। उस वीडियो को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसमें एस या एस लगाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे गोस, गो के साथ एस लगाया है, ऐसे ही राइट्स में राइट के साथ एस लगाया है और इसको सिंगुलर बनाया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम इज सिंगुलर एंड ही इज़ आल्सो सिंगुलर। थर्ड सेंटेंस हम देख लेते हैं, आई नो द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। यहाँ पर आई वैसे तो सिंगल होता है, लेकिन आई एक्सेप्शन है
और आई के साथ हमेशा जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो उसमें एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। विच टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जब भी हम आई के साथ वर्ब को लगाएंगे तो एस और एस यूज़ नहीं करेंगे। प्लीज़ मेक नोट ऑफ इट एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी सी व्हेन वी मेक अ सेंटेंस नेगेटिव, अ नेगेटिव सेंटेंस अ प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं? यू कैन सी हियर, हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा और सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए और सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, डू एंड डज, प्लीज़ पे अटेंशन। डू एंड डज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। डू एंड डज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। और सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम डू डज के साथ क्या यूज़ करेंगे? नॉट। और यदि हमने ध्यान रखे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स पे अटेंशन, डू डज यदि हमने सेंटेंस में यूज़ किया है तो हमेशा सेंटेंस में बेस वर्ब आएगी, वी वन आएगी और उसके साथ हम कभी भी एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, डू डज के साथ जब भी वर्ब लगाएंगे तो बेस वर्ब आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल्स। सी डज नॉट लाइक स्विमिंग। यू सी इज सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब क्या आएगी? डज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज। प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डू आएगी। सी डज नॉट लाइक, सी डज नॉट लाइक, तो हमें यहाँ पर लाइक के साथ एस और एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू यूज़ एस और एस विद the verb. Why? Because we have used helping verb in the sentence. She does not like swimming. See the second sentence. I do not know the history of the modern India. ये सी, ये सब्जेक्ट क्या हमारा? आई है। आई के साथ डज नहीं आएगा, डू आएगा हमेशा। तो क्या बनेगा? आई डू नॉट नो। वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या आएगा? नॉट आएगा। वाई? टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। क्या बनेगा सेंटेंस? आई डू नॉट नो द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस यू सी, दे डू नॉट अंडरस्टैंड यू। दे सब्जेक्ट है, दैट इज प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ क्या आता है? डू। जैसे हम जब भी जिस जिस भी सब्जेक्ट के साथ हम एस और एस नहीं लगाते हैं, कौन कौन से है वो? यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स। तो यहाँ पे दे है तो उसके बाद डू आएगा और डू नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड बेस वर्ब है, इसके साथ फिर एस और एस आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? नेगेटिव, दे डू नॉट अंडरस्टैंड यू। जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे, यदि हम इन्हीं सेंटेंस को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा? डज और नॉट को हटाना पड़ेगा, डू नॉट को हटाना पड़ेगा और डू नॉट को यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। सी लाइक्स स्विमिंग, आई नो द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया और दे अंडरस्टैंड यू। बट व्हेन वी मेक देम नेगेटिव, हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ करना पड़ेगा। आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट वी सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रश्नवाचक कैसे बनाएं, क्वेश्चन कैसे बनाएं? तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पता है सर्टिफाइड रूल है कि जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, फिक्स पैटर्न है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखें। कीप हेल्पिंग वर्ब्स बिफोर सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की डू और डज है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। और जब हमने डू डज यूज़ किया है तो ऑलवेज यूज़ बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ कभी भी आप भूल कर भी एस और एस नहीं लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? सी द एग्जाम्पल्स। डू दे वॉन्ट टू कंटिन्यू देयर फ्रेंडशिप, डू दे वॉन्ट टू कंटिन्यू देयर फ्रेंडशिप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हमारा दे है, दे से पहले डू आया है बिकॉज दे इज़ प्लूरल, दे प्लूरल है और उसके साथ डू यूज़ होगा और उसके बाद क्या आएगी? बेस वर्ब आएगी, डू दे वॉन्ट। सी द सेकेंड सेंटेंस, डज सी लाइक स्विमिंग, डज सी लाइक स्विमिंग, यहाँ पर सी हमारा सिंगुलर है इसलिए डज आएगा,
क्योंकि सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद, तो क्या बन जाएगा, डज शी लाइक स्विमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस यू सी, डू यू नो हर, डू यू नो हर, डू इज हेल्पिंग वर्ब, इट हैज़ बीन पुट बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले रखा गया है, और मेन वर्ब कहाँ आएगी, सब्जेक्ट के बाद आएगी, नो। तो हम देख लें कि जब डू और डज यूज़ करेंगे तो बेस वर्ब के साथ कभी भी एस और एस को नहीं यूज़ करेंगे। इस बात को मैं बार बार लगभग हर सेंटेंस के साथ रिपीट कर रहा हूँ, आप इस बात को नोट करें, प्रैक्टिस करें, एंड डेफिनेटली आफ्टर ए गुड ड्रिल यू विल नेवर मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक इन योर लाइफ। नेक्स्ट वी सी व्हेन वी मेक अ सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कि सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो क्या करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, डू डज को पहले रखना है। किससे पहले रखना है, सब्जेक्ट से पहले रखना है, और फिर क्या आएगा, नॉट आएगा। नोट को आगे नहीं ले जाना है, डू डज के बाद सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा। नोट किसके लिए यूज़ किया है, टू मेक सेंटेंस नेगेटिव, और फिर बेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अब सेंटेंस हम देख लेते हैं, डू दे नॉट वांट टू कंटिन्यू द मैच। अब यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आई है, उसके बाद नोट आएगा और वांट आएगा। क्यों आया नोट और वांट, इस सेंटेंस को नोट आया नेगेटिव बनाने के लिए, और डू सब्जेक्ट से पहले इसलिए आया है क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। ये हमने लास्ट में क्या लगाया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस यू सी, डज शी नॉट लाइक स्विमिंग। यहाँ पर भी अब देख लीजिए, सेंटेंस को हमने इंटरोगेटिव बनाया है तो उसके लिए हमें हेल्प सब्जेक्ट से पहले डू डज को लगाना पड़ेगा, उसके बाद नोट आएगा, फिर वर्ब की बेस वर्ब आएगी। इसमें एस और एस अब यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन यू सी, डोंट यू नो हर। अब इसमें हमने क्या किया है, अब इसमें हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ किया है, जिसमें हमने नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ज्वाइन कर दिया है। जैसे हम डू के साथ किया है तो ये हो गया डोंट, आप जानते हैं ये। और यदि हम इसको डज के साथ यूज़ करते तो ये बन जाता डजंट। यदि हमने डोंट और डजंट सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ कर देते हैं तो हमें सब्जेक्ट के बाद फिर नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, हमने थर्ड सेंटेंस में यहाँ पर नोट यूज़ नहीं किया है। नोट यूज़ कब करना है, जब हम सेंटेंस को डू डज से बिगिन करें और उसको नेगेटिव बनाना हो, तब सब्जेक्ट के बाद नोट यूज़ करना है। इसी का दूसरा लिखने का तरीका ये होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ ही डू डज को ऐड कर दें और उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ करें, दैट इज़ डोंट और डजंट, बोथ आर करेक्ट। डोंट यू नो हर। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स you have understood the structure और syntax of present simple tense। इसको नोट करें और बार बार इसको लर्न करें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। अब आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो यूजेस हैं, आपने जो हमने यहाँ पे यूजेस आपको बताएंगे, इनको ध्यान दें, इनको आप लर्न करें, इनको नोट करें, और डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग सेंटेंसेस और टू गेट मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम। फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ्स। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी बातें जो सदा सर्वदा हर जगह सच रहें, उनमें कोई बदलाव ना आए। साइंटिफिक ट्रूथ क्या होते हैं, ऐसी बातें जो विज्ञान द्वारा स्थापित की गई हैं और वो फिक्स हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हनी इज़ स्वीट, ये एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हनी इज़ स्वीट। अब हनी को हम इंडियन हनी, पाकिस्तानी, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, स्वीडिश, कहीं का भी आप किसी भी देश में जाके हनी खाएंगे तो वो स्वीट मिलेगा, इसलिए यूनिवर्सल है, हर जगह ये सच रहेगा। नेक्स्ट यू सी, द सन शाइन्स बाई डे एंड द मून बाई नाइट, कि दिन के समय सूर्य चमकता है और रात के समय चंद्रमा सूर्य की चमक के कारण चमकता है। तो इस बात की भी हमारा एक साइंटिफिक ट्रूथ भी है, इसको ध्यान रखें। और ये हम पढ़ते हैं, ये जानते हैं, और ये हमेशा होता है, ये डेली का रूटीन है, एक नेचुरल रूटीन है
फिक्स है, इसलिए इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग? You see the next sentence or next use of present simple tense, routine और habits in life and character, कि हमारे जीवन में जो हमने रूटीन बनाए हुए हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, उन रूटीन और हैबिट्स को हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। यदि आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो आप एक दिन सुबह से शाम तक की अपनी सारी एक्टिविटीज़ लिखें कि रोज़ मैं क्या कौन कौन से काम करता हूँ। आप देखेंगे उन सभी सेंटेंसेस के एंड में हमें ता है, ते है, ती है मिलेगा जब उनको हम हिंदी में लिखते हैं, और उनको जब ट्रांसलेट करेंगे तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होगी। हम सेंटेंस देख लेते हैं। सी ये उसके करैक्टर का हिस्सा है कि वह अपने वादों को निभाती है। और ऐसे ही माई फादर टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, सेकेंड सेंटेंस यू सी माई फादर टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, ये एक रूटीन है कि फादर, उनकी एक हैबिट भी है कि डेली वो सुबह उठकर कॉफ़ी लेते हैं। हम रोज़ सुबह स्कूल जाते हैं और स्कूल हमारा 8 बजे लगता है। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। ये हमारा रूटीन है। वी डेली गो टू मॉर्निंग वॉक और गो फॉर मॉर्निंग वॉक एट 7 AM। ये हमारा एक रूटीन है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं नियर फ्यूचर, और फ्यूचर टाइम इज इम्प्लाइड बाय द कंटेक्स्ट शेड्यूल्ड और फिक्स टाइम इन फ्यूचर। सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊंगा कि जब भी, वैसे तो फ्यूचर टेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये आप सबको पता है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली, और ही विल गो टू दिल्ली, और आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। लेकिन जब हमारा जो फ्यूचर में होने वाली, नियर फ्यूचर में होने वाली इवेंट हो और वो फिक्स हो, उसका शेड्यूल फिक्स हो कि डेली वो काम उसी समय होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल 1 देखिए, आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन डज द बस स्टार्ट फॉर दिल्ली। हमें पता है कि बस कब चलेगी, सेंस ये है, लेकिन क्योंकि ये फिक्स टाइम है और उस फिक्स टाइम का मतलब कुछ ऐसा होता है कि कल या कभी भी उस समय को, उस कार्य को होने का टाइम जो है फ्यूचर में फिक्स होता है, वो हमेशा उस समय ही होता है। और अब हम आगे फ्यूचर के उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब वो बस चलेगी, तो इस तरह के सेंटेंस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। व्हेन डज द बस स्टार्ट फॉर दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस यू सी, वी गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम फिक्स है, हम अगले सप्ताह मुंबई जाएंगे, तो ये हमारा फिक्स प्रोग्राम है, शेड्यूल्ड है। तो जब ऐसा शेड्यूल्ड प्रोग्राम हो और नियर फ्यूचर में हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें केयरफुल होना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में जो शेड्यूल्ड टाइम है वेदर इट इज़ फिक्स्ड और नॉट। इफ़ इट इज़ नॉट फिक्स्ड, in that case we'll have to use future tense, but if it is fixed or scheduled, then we can use present simple tense. Next we see historical, number 4, historical present or when historic stories are told lively, कि पुरानी कहानियाँ और नए रोचक ढंग से वर्तमान में वो सुनाई जाएं, प्रेजेंट में वो सुनाई जाएं, और उनको इस तरीके से नैरेट किया जाए कि अभी हमारे सामने वो घटना चल रही है या अभी हमारे सामने वो घटना हो रही है। यू सी द एग्जाम्पल, गांधी जी नाउ स्टार्ट्स द डांडी मार्च, कि गांधी जी डांडी मार्च शुरू करते हैं। हमने हिस्टोरिक इवेंट को इस तरीके से प्रेजेंट किया है टू मेक इट मोर इफ़ेक्टिव और टू प्रेजेंट इट लाइवली। सो पास्ट की घटना है डांडी मार्च, और उसको हमने प्रेजेंट के वे में आपके सामने रखा है या ऑडियंस के सामने रखा है। गांधी जी नाउ स्टार्ट्स द डांडी मार्च। नेक्स्ट यू सी, लक्ष्मीबाई ड्रॉज हर स्वॉर्ड एंड अटैक्स द एनिमी। ये जब लक्ष्मीबाई थी अंग्रेज़ों से लड़ी थी, उस समय की घटना है, लेकिन इसको हम अभी प्रेजेंट में
डिपिक्ट कर रहे हैं, इसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसको हम लाइवली करने के लिए, ड्रामेटाइज करने के लिए हम उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो जब हिस्टोरिक इवेंट्स को, पुरानी घटनाओं को ड्रामेटाइज किया जाता है या उनको बड़े ही रोचक ढंग से अभी वर्तमान समय में नरेट किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम पुरानी घटनाओं के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, कि जब भी हमें किसी की कही गई बात को कोट करना है, उद्धृत करना है, तो ऐसी जगह पर हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। कहाँ पर करेंगे? इन रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है। ओके, जैसे गांधी जी सेज, तो गांधी जी सेज दिस इज़ रिपोर्टिंग वर्ब, और ऐसे में उसके बाद हम कोटेशन के मार्क्स लगाएंगे और उस कोटेशन को रखेंगे। तो इस तरह के जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब्स होगी उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया सेज, गांधी जी सेज, नो वन कैन हार्ट मी विदाउट माई परमिशन। नेक्स्ट यू सी फ्रांसिस बेकन सेज। अब बहुत पुराने ये स्कॉलर हैं, उस टाइम हुआ करते थे। यहाँ पे हमने इसमें जो इन्वर्टेड कॉमास मिस किया है, नॉलेज इज़ पावर, यू किसी नॉलेज इज़ पावर। तो ये कोटेशन है, इस कोटेशन को बताने के लिए हम जिस वर्ब का यूज़ करेंगे उसको हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। हमेशा जब भी हमें कोई कोटेशन लिखनी है और उस कोटेशन को हम यदि इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, तो क्या करेंगे, हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसकी रिपोर्टिंग वर्ब लिखनी है, ध्यान रहे। नेक्स्ट वन इज़ इन क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड कंडीशन इन प्लेस ऑफ फ्यूचर सिंपल, कि जब टाइम और कंडीशन का क्लोज हो, समय और शर्त को दर्शाने वाला क्लोज हो, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो सेंटेंस हम हिंदी में बोलते समय हमें लगेगा कि वो क्या है, फ्यूचर का है, लेकिन जो उसका सबॉर्डिनेट क्लोज होगा, दो क्लोज होते हैं, मेन क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज। जो सेंटेंस में सबॉर्डिनेट क्लोज होगा उस क्लोज में हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। यू सी द सेंटेंस, आई शैल वेट टिल सी रीचेज, कि मैं उसका इंतज़ार करूँगा जब तक कि वह आएगी। सेंस ये है, लेकिन जब हमारी जो मेन क्लोज है उसमें शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट यू कैन से फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ किया है, और जब उसमें हमने एक कंजंक्शन यूज़ किया टिल, उसके बाद जो सेंटेंस आएगा दैट इज़ क्या आएगा, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज, और उसमें हमें क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। जब हिंदी में हम इस तरह के सेंटेंस को लिखते हैं तो दोनों ही पार्ट में फ्यूचर सिंपल की सेंस आती है। ऐसे में जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करना है। कब करना है? जब मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ किया गया हो। यू सी नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक आई शैल ब्रिंग यू अ लैपटॉप। अब इसमें मेन क्लॉज क्या है? आई शैल ब्रिंग यू अ लैपटॉप, मैं आपके लिए एक लैपटॉप लाऊंगा, लेकिन कब लाऊंगा? यदि मैं दिल्ली जाऊंगा नेक्स्ट वीक, यदि नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह मैं दिल्ली गया जाऊंगा तो आपके लिए लेकर आऊंगा। ऐसे में जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है उसमें हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है, और इसको ध्यान में रखना है कि जब हमारी क्लॉजेज ऑफ टाइम और कंडीशन में मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ किया गया है, सेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। इट मीन्स हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। प्लीज़ मेक इट नोट इट डाउन एंड इट शुड बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट यू सी हियर a test for you, and you can write the answer of these, you can say, sentences or use of tenses in comment box. I will check there. I hope that you have got this the uses of present simple tense very well. If you let's first you see 2 and 2 dash 4, choose one, make or makes. The second sentence, the earth dash round the sun, move or moves. Third one, my mother dash to temple daily, go or goes. This road dash to Chandigarh, leads or lead.
water dash at 100 degree Celsius. Dear students, don't forget writing your answer in comment box. And I hope you have understood the uses of present simple tense. Please keep watching the video again and again, make notes of it, and I'm pretty sure that after having watched this video, your doubts will be over and you will be able to make use of present simple tense very well, not only for exam point of view but for general uses also. You will be able to use present simple tense. So friends, if you like, if you find the video good enough, please like and share it. And if you are first time watching my YouTube channel Educare, you are on my YouTube channel first time, please subscribe it so that my videos can reach to you. Okay, bye, take care, thank you.